Meanwhile, Union Home Minister Amit Shah stated that he stood in support of the bill introduced by his ministerial colleague. He mentioned that he had been carefully listening to the discussion since noon and felt that several members had misconceptions, either genuinely or for political reasons. He also observed that attempts were being made through the House to spread those misconceptions across the country. आज जो मेरे साथी मंत्री बिल लेकर आए हैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सुबह से जो चर्चा चल रही है 12 बजे से ओके एक मिनट चेक कराता हूँ। हाँ एक सेकंड चेक कराता हूँ। सेकंड में करा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मानेंगे माननीय अध्यक्ष जी, 2 मिनट लगता है कभी। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसको मैंने बारीकी से सुना है। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो माननीय रिज्जू साहब देंगे। मैं कुछ बातें यहां रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। आज जो Congress MP K.C. Venugopal stated that he had expected several legislations during this period but was disappointed by their absence. He pointed out that farmers had been protesting for years, demanding legal guarantees for MSP, yet no bill had been introduced. He also highlighted the issue of youth unemployment, stating that the country had anticipated transformative legislation for them, which had not materialized. He accused the government of prioritizing legislation aimed at dividing the nation in the name of religion. I thought that in this, sir, I thought that, sir, you have to protect me, sir. Sir, I thought that in the introduction of this bill also, I have spoken. In this house, we are all came as a representative of the people. The great country, Bharat, being the member of parliament of our great country, we are representing our people to demonstrate, to debate on the issue related to peoples. I expect that so many legislation are coming in during this period. I expect that legislation last so many years, our farmers are in the street. They are asking for doubling MSP, of legal guarantee for doubling MSP. The bill is not coming. The youngsters of this country, they are totally unemployed, they are in despair. Therefore, the country expecting something, legislation to change, the drastic change for the youth of this country, not coming. The legislation, piece of legislation given priority by this government, you can see that to have only one agenda, to divide our own Bharat Mata on the name of religion. To divide Bharat Mata on the name of religion. This is the only one agenda. Yes, Kiran Rijiju is speaking. While speaking, you are repeating. This is not against minority. This is not against. Why this type of guilty conscience in your mindset? Why this type of guilty conscience? Why? I thought that in this, sir, that BJP MP Anurag Thakur stated that the Waqf Amendment Bill should not be viewed as just a bill but as Umeed,
which means unified work management, empowerment, efficiency and development. He emphasized that this initiative promotes empowerment, efficiency and development, gaining support from the people of the country. Thakur also mentioned that several organizations, including the Catholic Bishops' Conference of India, Church of Bharat, Kerala Council of Churches, Kerala Catholic Bishops' Council, All India Sufi Sajjadan Council and Muslim Rashtriya Manch have expressed their support for the bill. He thanked these organizations for their backing and argued that the work system has become a hub for corruption and atrocities, making it necessary to amend the law. Thakur further pointed out the work law formed during the Congress has caused harm with the mentality of Kata na bahi, jo work kahe wahi sahi, and call for India's liberation from the fear of work. ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में एम्पावरमेंट है, एफिशिएंसी है, डेवलपमेंट है और कहीं ना कहीं इसी को देखकर आज जहां देश भर के लोग इसके समर्थन में हैं, वहीं कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ भारत, केरला काउंसिल ऑफ चर्चेस, केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल और ऑल इंडिया सजदा नेशन काउंसिल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसी अनेकों अनेक संस्थाओं ने, चर्च से लेकर मुस्लिम की अन्य सभाओं ने इसका समर्थन किया है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति जी, वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि यह अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। यानी कि जहां पे कह दिया वक्फ की जमीन है, वो फिर वक्फ की जमीन हो गई। वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है कहने की, बताने की कि ये कैसे उनकी जमीन है, लेकिन जिसकी चले गई वो बेचारा दर दर भटकता है और उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है। मैं इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। Hospital earlier today, following a deterioration in his health, has now left for Delhi for further treatment. प्रेम मोबाइल पीछे करो। अरे मोबाइल पीछे करो ना यार। अरे प्रेम क्या कर रही यार तुम? Congress National President Mallikarjun Kharge and Karnataka Chief Minister Siddaramaiah attended the inauguration ceremony of the new Karnataka Bhavan in Delhi, marking a significant addition to the state's presence in the national capital.
क्या कर रहे हैं यार आप? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वो मिला Delhi Minister Majinder Singh Sesa stated that the Waqf Amendment Bill was historic and aimed at benefiting poor Muslim families. He emphasized that the initiative aligned with the Prime Minister's vision of inclusive development, ensuring that even the last person in the line was considered. Sesa highlighted that the amendment would bring transparency and efficiency in the management of Waqf properties, preventing misuse and ensuring that the rightful beneficiaries received support. He also expressed confidence that the bill would contribute to the empowerment of marginalized communities. आज वक्फ के ऊपर चर्चा चल रही है, ऐतिहासिक। देखिए, वक़ाफ़ बोर्ड का ऐतिहासिक बिल है ये, जो आज हमारे देश के चुने हुए नुमाइंदे अलग अलग पार्टियों से देश के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इससे हमारे परिवारों के अंदर वक़ाफ़ बोर्ड के माध्यम से गरीब परिवारों के अंदर, गरीब मुस्लिम परिवारों के अंदर जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंच सके, ऐसी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, चाहे आखिरी कोने में बैठा हो, उसके लिए भी मेरे देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं। मैं समझता हूं कि इसके आने वाले दिनों में इससे अच्छा कम्युनिटी के, उनकी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी इसका लाभ मिल सके और गरीब तक इसका लाभ पहुँचाया जा सके। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और दिल्ली देश की इस बड़ी पंचायत में सभी मेंबर साहिबान का धन्यवाद करते हैं। आज वक्फ के ऊपर चर्चा चल रही है, ऐतिहासिक। देखिए, वक़ाफ़ बोर्ड का ऐतिहासिक बिल है ये, जो आज हमारे देश के चुने हुए नुमाइंदे अलग अलग पार्टियों से देश के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इससे हमारे परिवारों के अंदर वक़ाफ़ बोर्ड के माध्यम से गरीब परिवारों के अंदर, गरीब मुस्लिम परिवारों के अंदर जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंच सके, ऐसी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, चाहे आखिरी कोने में बैठा हो, उसके लिए भी मेरे देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं। मैं समझता हूं कि इसके आने वाले दिनों में इससे अच्छा कम्युनिटी के, उनकी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी इसका लाभ मिल सके और गरीब तक इसका लाभ पहुँचाया जा सके। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और दिल्ली देश की इस बड़ी पंचायत में सभी मेंबर साहिबान का धन्यवाद करते हैं। आज वक्फ के ऊपर चर्चा चल
Parvesh Sharma stated that he was unaware of the actions of the previous government that led to water bills amounting to lakhs of rupees being sent even to houses measuring 25 to 50 yards. He mentioned that an investigation was underway to address the issue. Assuring relief, he said that all inflated bills would be corrected and, if found completely erroneous, would be waived. And further, he added that constructive discussion had taken place with the Chief Minister regarding relief on fines and an official announcement on the matter would be made soon. एक तो इलेक्शन से पहले जो पहले की सरकार थी उन्होंने कैसे क्या सिस्टम किया कि चाहे 25 गज का मकान हो चाहे 50 गज का मकान हो, उनके यहाँ पे भी लाखों रुपए के बिल भेजे पानी के, तो उसकी हम लोग जो है जांच करा रहे हैं। जितने भी बड़े हुए बिल हैं वो सबको ठीक करेंगे, अगर बिल्कुल गलत है तो उसको माफ़ भी करेंगे। और एक जो है हमको हमारे सदस्य जो कह रहे हैं कि उनके ऊपर में पेनल्टी चार्ज, फिर वो ब्याज के ऊपर में ब्याज ऐसे लगाने का, उसके ऊपर में भी राहत देने के लिए हमारा मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, तो एक अच्छी जल्दी घोषणा करेंगे। सर, आपने एक और बात ये भी कही थी कि जो बिल आए हुए हैं उन्हीं लेकर जो उपभोक्ता हैं वो ज़्यादा चिंता ना करें, पैनिक ना करें, उसका समाधान पर कनेक्शन भी कर रहे हैं। देखिए, जो नीचे के मीटर रीडर होते हैं वो क्या करते हैं कि गलत बिल देते हैं, तो वो रीडिंग गलत करके तो वो ज़्यादा बिल बनाते हैं और उसको ठीक करने के चक्कर में वो नीचे लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो इसकी बहुत सारी शिकायत आई है। मैंने कहा है लोगों से, अगर आपके बिल गलत है, आपको लगता है, तो बिल्कुल ना घबराएं, आपका कनेक्शन कोई नहीं काटेगा। और ऐसे जितने भी नीचे के मीटर रीडर जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं उनके ऊपर में हम अपना कदम उठाएंगे और सबको निकालेंगे। एक एमनेस्टी स्कीम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली हाइट्स में जो रॉन्ग? मैंने जैसे कहा कि खुशखबरी आएगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। सर, वक्फ को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या नया अमेंडमेंट बिल आ गया है? देखिए, वक्फ बिल एक जो है पब्लिक इन लार्ज में, चाहे हमारा जो मुस्लिम समाज है उसमें कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाते थे, मगर एक बड़े जो है अपना समाज में, मुस्लिम समाज में, और जो ज़्यादातर निचला तबका रहता है उनको बहुत बड़ी राहत इससे मिलेगी और वो सभी खुश हैं। एक तो Congress MP Pramod Tiwari criticized the Minister of State for Home over his statements on the immigration bill in the Rajya Sabha, alleging that he lacked knowledge of facts, history and the House Code of Conduct. Accusing the Minister of making baseless allegations without evidence, Tiwari stated that the India Alliance staged a walkout in protest. विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया है। एक ऐसा मंत्री, गृह राज्य मंत्री के रूप में बोल रहा था जिसे तथ्यों का ज्ञान नहीं, इतिहास का ज्ञान नहीं, नियमावली का ज्ञान नहीं और पूरा का पूरा झूठ बोल रहा था। उसे सदन की परंपराओं का ज्ञान नहीं, ऐसे आरोप लगा रहा था जिसके ऑथेंटिकेट करने के लिए उसके पास कोई साक्ष्य भी नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, हमारे एक सम्मानित सदस्य टीएमसी के, इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, उसका कोई जवाब नहीं। हमारे झा साहब ने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, उसका कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नियम उसको आते नहीं, कोई कानून उसको आता नहीं, कोई परंपरा उसको आती नहीं। तो ऐसे मंत्री के सुनने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जिसको ज्ञान ही ना हो सदन संसद की कार्रवाई का, मैं आरोप लगाता हूं कि मंत्री को पढ़ लिख कर आना चाहिए। बिना पढ़े लिखे मंत्री को नहीं आना चाहिए। और गृह राज्य मंत्री बिना पढ़े लिखे चौराहा छाप भाषण दे रहे थे, जिसके विरोध में हम लोग वॉकआउट किया। विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया है। एक Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav stated that whenever the BJP introduces a new bill, it distracts from its failures. He claimed the BJP is focusing on identifying Muslim land to cover up the issue of identifying Hindus lost in the Mahakumbh. He also demanded the government reveal the list of 1,000 Hindus still missing. Yadav questioned Union Minister Kiran Rijiju about the land where China has settled villages, suggesting the bill was introduced to divert attention from these pressing concerns. अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या
खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं,